Merhaba.
కొనికైనా వాడిన ఆపైకి खोलते हैं इनका वो मार तो खुल कोन आवाज ताई कोन दे कहां ताई दो सुन तो लियो शासन बोलेंगे कौन बोला साउंड రావాలి తెలియక Good afternoon, Kishore ji. Good afternoon to you. Who is this? This is Shankar from Dicky. Yes, Mr. Shankar. Yeah, welcome. As we wait for the others and the chairman to join. Yes, sure. Thank you very much. Sir, good evening, sir. Good evening. Who is that? These are the advantages and disadvantages of doing a web meeting. And currently, when the whole country is working from home. Yes. नमस्ते सर, भोपाल से अनिल सिरवैया सर। नमस्ते, नमस्ते. Sir, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening.
सुनील रसेनिया ग्वालियर से सर। हाँ जी बोलिए। अभी चालू करते हैं थोड़े से मिलिंद जी आने के बाद। आई थिंक मिलिंद जी इज येट टू ज्वाइन। Good evening, everyone. Good evening, Nara sir. Chairman sir will join in a while. We'll just give a couple of minutes for others to join and start. यस Nara sir, good evening. Sanjeev ji, good evening. Evening, Shelke sir. Good evening, Kharat sir. गुड इवनिंग। Bharat sir, good evening sir. या गुड इवनिंग गुड इवनिंग। So how are you sir? आई एम फाइन थैंक यू। वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। Sir. और ये मिस्टर नारा। Chairman sir is traveling, so I think he'll join. He's at the airport. तो कुछ उनका flight था, but he has to change the flight because of some issue. He will join in a while. Okay, no issues. But I think almost 66 participants. हाँ sir, I can see. we'll start sir. No, it's up to you. If you want, just check up from chairman how long it's going to take. Otherwise, He if you said have कि not आप landed. carry कीजिए, मैं join करता हूँ, तो भी एक बार अच्छा, पूछ लेता हूँ. नहीं ठीक है। आप जैसे कहेंगे we will go ahead with that. Okay, so good evening everyone. I think we'll start. बीच में 2-3 हफ्ते से events नहीं थे because थोड़ी situation was particularly bad everywhere, and unfortunately we have also lost some of our members इस दौरान. Nara sir will ask everybody to pay tributes to them. But before we start, I would just say that we are restarting our webinar expert series. Actually, it is a launch. पहले 3-4 हुए हैं. खराज साहब भी पिछले साल भी आए थे जब फेज 1 था कोविड का. May 15 को हमने खराज साहब के साथ में वेबिनार किया था. And now in the second द क्रक्स जो निकल के आया था, जो खराज साहब के सजेशंस थे, जो दूसरे मेंबर्स के सजेशंस आए थे, वी हैड टेकन इट अप विद द गवर्नमेंट, और काफियों के ऊपर कुछ काम भी हुआ आत्मनिर्भर जो भारत पैकेज में और अदरवाइज जो भी कोविड रिलीफ में. एंड नाउ इट्स आल्सो द टाइम टू एंगेज वंस अगेन विद द गवर्नमेंट. So we are thankful to Kharat Sahab that he has accepted our invitation to come once again and to guide us, formulate what all we can ask to the government. So main points of agenda is the impact on the industry, continuation of Atmanirbhar Bharat package, revival and survival of MSMEs, and way forward. I would request our national president, Padma Shri Ravi Kumar Nara ji, to give a brief introduction about Kharat Sahab and give his introductory message to the members. Ravi Kumar Nara, sir. Sir, Sudhir here. Just a minute. Can we have a silent prayer for Ravi Chandra, please? We'll do it. Yeah. Sudhir sir, Nara sir is coming to that. Okay, thank you. Sorry. Good evening, sir.
this COVID last year we have lost Rajendra Gaikwad ji from Pune, and Oh. this month we have a great loss to our chairman की mother-in-law सीमा मैडम के मदर भी गुजर गए हैं। और डिक्की के आंध्र प्रदेश में डॉक्टर शंकर बोल के लैटको फ्रेश डायरी फैक्ट्री सेटअप करने इसमें थे वो लोग, तो उनका भी ऑल ऑफ सडन उनका डेथ हो गया है। और कल रविचंद्रा जो वाइस प्रेसिडेंट है आंध्र प्रदेश डिक्की का चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो तो डिक्की का प्रेरण से ही वाज ए आईटी एम्प्लॉय, आईटी में काम करते थे बेंगलुरु में। जैसे ही डिक्की का कनेक्शन हुआ है, फिर उनका थॉट प्रोसेस में चेंज होके एंड ही स्टार्टेड सेवरल बिजनेसेस एंड ही हिमसेल्फ हैव बिकम ए जॉब गिवर, बहुत बढ़िया करता था। और डिक्की का बहुत अच्छा समझदार थे। डिक्की का नेसेसिटी इस देश में और अपने समाज के लिए कितना जरूरत है, तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, उसके लिए डिक्की के लिए बहुत काम करता था। तो बहुत ही कमिटेड लेवल से काम करके लोगों को उनका जो आईटी कैपेसिटी है वो पूरा अपने मेंबर्स को सहायता करता था। तो इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर डिक्की as a whole and for me also personally, because he was under my guidance, he was working, he was so तो इसमें ये सब जो भी अपने साथ में अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ, उनका मॉर्निंग 2 मिनट का मॉर्निंग अपना डिक्की के माध्यम से करना, 2 मिनट्स मॉर्निंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज डिक्की का जो एक्सपर्ट सीरीज का वेबिनार में फिर चालू करने का डिसीजन नेशनल लीडरशिप ने लिया है, तो उस सिलसिले में ये फाइनेंशियल ईयर में ये पहला एक्सपर्ट सीरीज का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और अपने डिक्की के मेंटर हैं, डिक्की के अपने चेयरमैन के बहुत सा अच्छा मित्र है, हम सबको हमेशा गाइड करने का किशोर कारत जी ये सीरीज को अभी फर्स्ट सीरीज उनसे दे रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर में। और खराज साहब तो इससे पहले भी डिक्की से बहुत अच्छा जुड़े हुए हैं और उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान का एडवांटेज तो डिक्की ने कई बार लिया है और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन उनका नेतृत्व में हो रहा है। पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल फील्ड है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स जो भी हो रहा है, तो उसको समझने में और अपने लोगों को समझाने में किशोर कारत जी का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हमारे को तो बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि अपना समाज से इतने बड़ा लेवल को एक आदमी जो उनका करियर शुरुआत बहुत ही छोटी सी पोजीशन से शुरुआत करके जो भी अपॉर्चुनिटी हर एक अपॉर्चुनिटी को वो चैलेंज में लिए हैं और उनका परफॉर्मेंस दिखा के एवरी स्टेप ऐसा लैडर
क्लाइम हुआ कि he could able to become the managing director and CEO of Indian Bank, one of the oldest and prestigious बैंक का MD और CEO भी बने हैं। और IDBI के भी MD मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन निभाया है। तो wherever he has worked and he has shown the new direction to the organization, and वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाइट्स को उनका लीडरशिप में वो ऑर्गेनाइजेशन को रेज हुआ है। तो उतना लीडरशिप क्वालिटीज एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज और जो फाइनेंशियल फील्ड में जो कमांड है, वो कमांड किशोर कारत जी का फाइनेंस फील्ड में बहुत ही अच्छा नाम, उनका अपने खुद का एक इमेज बना लिया। तो ऐसा किशोर कारत जी अपने साथ में रह के और अपने को मार्गदर्शन करते हुए एवरी टाइम तो शेयर करते हैं। तो डिक्की ने सोचा है कि नेशनल टीम ने सोचा है कि ये पैंडेमिक में जो सिचुएशन पूरे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट पैंडेमिक में भी एक्सपीरियंस किए हैं, अभी सेकंड पैंडेमिक। तो फर्स्ट पैंडेमिक में उतना पैनिक नहीं थे, लेकिन सेकंड पैंडेमिक में तो इतने पैनिक है, हम किसी को फोन पे बात कर रहे तो भी सबका दुखी है, क्योंकि हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई वो अपने खुद के वेरी कनेक्टेड पीपल जिसके ऊपर अपन डिपेंड होते थे, उनके मृत्यु हो गया। तो बहुत ही शॉकिंग में पूरे डिक्की मेंबर है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे हैं, और वो सब समझने के लिए कैसे ओवरकम करना क्या है और क्या सिनेरियो ये रहने वाला है देश भर में, तो अपना रोल क्या प्ले करना है, ये कोविड का इम्पैक्ट एमएसएमई बिजनेस पे कैसे है, कैसे उसको एडवांटेज क्या ओवरकम कर सकते हैं, ये बताने के लिए आज किशोर कारत जी को बुलाया। तो किशोर कारत जी, thank you very much for accepting our invitation and sparing your valuable time and giving us the knowledge and direction for this series. So I request you to please start your lectures. Thank you very much. थैंक यू नरा जी, आपने मुझे ये मौका दिया और एक बार हमारे भाई बहनों के साथ बात करने का, और आप ये एक्सपर्ट का सीरीज जो पुनः एक बार जो शुरू कर रहे हैं, और उसमें पहला स्पीकर करके आपने मुझे बुला के मेरा एक गौरव किया है, इसमें सम्मान किया है। सही मानो तो एक्सपर्ट सीरीज में बात करने के लिए और पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करने के लिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला अगर एक्सपर्ट है तो उसको हम एक्सपर्ट कह सकते हैं। मैं आपके फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपके फील्ड के लिए जो जरूरी एक इंग्रेडिएंट है फाइनेंस का, उसमें जरूर मेरा अच्छा प्रावधान हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस है। 42 इयर्स का बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक्सपीरियंस करने के बाद मैं एंटरप्रेन्योर को आपके सामने वाली बाजू से मैं देखता हूं। मित्रों, हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं, और एक पिछला साल हमने काफी सारे चैलेंजेस से गुजारा है, काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं। ये प्रॉब्लम्स फेस करते करते हमने काफी सारे हमारे अपनों को गंवाया है। ये जो सिचुएशन आई है आज, सारे विश्व के ऊपर ये सिचुएशन आई है, और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेरे ख्याल से विश्व स्तर पे हर एक कंट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना प्रयास कर रही है। ये एक अनोखा सा पैंडेमिक है जो हमारी जो जनरेशन है, आज जितने भी लोग यहाँ पे जिंदा हैं इस धरती पे, सारे लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा भयावह
समय निकालने का, और इसीलिए इसको एक अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक हम कह सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड इसलिए भी है कि ऐसा नहीं कि पहले कभी पैंडेमिक आया नहीं था इस दुनिया में। स्पेनिश फ्लू की बात करें 1910 से 1920 तक चला था। हम काफी सारे ऐसे चैलेंजेस हमने देखे हैं, हमारे पहले वाले जो जनरेशन्स थी उन्होंने देखी है। 30s का डिप्रेशन, एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, उन दिनों में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी डेवलप नहीं हो गई थी, बट 1930s में जो डिप्रेशन आया था वर्ल्ड वाइड, आज आप जिस दौर से जा रहे हैं उससे भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां उस वक्त थी। वर्ल्ड वार के ऊपर, वर्ल्ड वार जो हुए थे फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद भी काफी सारी कठिनाइयां आई थी लोगों को। कैसे संभाला जाए, कैसे इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, कैसे अपने बिजनेसेस को डेवलप किया जाए। मैं इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूं कि कठिन परिस्थितियां आती है, और वो जो दौर थे जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उस वक्त ऐसा शायद लगता था लोगों को कि जिंदगी अब यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर देखोगे तो हर एक चैलेंजिंग पीरियड के बाद, हर एक चैलेंजिंग पीरियड के बाद ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये इतने जबरदस्त रिबाउंड्स किया है उन्होंने, फाइट करते हुए इन्होंने वापस अपनी जिंदगी जो चालू की। उस वक्त कठिनाइयों के ऊपर मात करने के बाद जो जिंदगी चालू की, वो एक अलग सा स्पिरिट होता है। और उस स्पिरिट के साथ जब आप वापस अपना लाइफ जब रीस्टार्ट करते हो, तो पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर लाइफ होता है। किसने सोचा था कि वर्ल्ड वार 2 में जो जापान, एक बिल्कुल छोटा सा देश है जो नेस्तनाबूद हुआ था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कंट्री वापस उभर जाएगी। लेकिन आज जापान की आप परिस्थिति देख रहे हैं, उसकी इकोनॉमी देख रहे हैं। पॉइंट ये है कि कठिन दौर से अगर हम डर गए, अगर हम हार गए, तो हम उभर के आना बहुत मुश्किल है। आज जमाना ये है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मीन्स जो आदमी अपने आप को फिट रखेगा, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आर्थिक तौर से, वही आदमी इस दौर से सुरक्षित निकल पाएगा। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि सारी दुनिया में हम अगर देखेंगे, तो मैं थोड़ी सी हमारे कम्युनिटी की बात करूं, ऑलरेडी हम डिसएडवांटेजेस स्टेजेस सिचुएशन में थे, डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में रह चुके हैं, रहे हैं, और डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में होने के कारण ये चैलेंजेस जो भी हमारे ऊपर आते हैं, ये चैलेंजेस को सामना करने का हमें एक इनबॉर्न क्वालिटीज मिला है। हमारे जितने भी प्रायर जनरेशन्स थे, जिन कठिनाइयों से उन्होंने अपनी जीवन शैली संभाली थी, तो एक हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में एक फाइटिंग स्पिरिट होता है कि भाई कुछ भी करके हम इससे बाहर आ जाएंगे। आप सब लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप जब चालू किया, तो काफी सारे लोग इस एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल पहली बार होंगे, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। बहुत कम हमारे रादर समाज में लोग हैं कि जो पीढ़ियों से एंटरप्रेन्योर हैं। आप में से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90% लोग ये बिल्कुल पहली बार एंटरप्रेन्योर में आप आए होंगे। ये एक आपका बहुत बड़ा डेयरिंग स्टेप है, एक करेजियस स्टेप है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप दलितों के लिए कभी सपने में भी नहीं आता था। और चातुर्वर्ण से जब हमारे दिमाग में ये डाला था कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए है ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप, हम तो क्षुद्र हैं, तो हमारे लिए ये जो काम उन्होंने ये चातुर्वर्ण में जो बांटे थे, वो सब देखते हुए कोई सोच नहीं सकता था कि ये एंटरप्रेन्योरशिप हम चालू करेंगे। लेकिन आप सब लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया। उसके बाद डिक्की जो है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
इसने जो इसको एक स्ट्रेंथ दी है, एक एसोसिएशन बनाई, एक यूनियन बनाई, उसकी एक स्ट्रेंथ दी। मैं खुद हमारा जो 10th एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, जहां प्राइम मिनिस्टर आए थे विज्ञान भवन में, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि क्योंकि उस दिनों आई स्टिल रिमेम्बर, पूरा विज्ञान भवन के जितने भी हॉल्स थे वो सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स से भरे हुए थे, पैक थे, और सारे एंटरप्रेन्योर्स जो बैठे थे सामने वो एकदम वेल टू डू, प्रॉपरली ड्रेस्ड। उनको देखते ही ऐसा लगता था किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ये लोग दलित होंगे। प्राइम मिनिस्टर भी चकरा गए थे, और उनके बिल्कुल हृदय से आया था कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो वो ज्यादा खुश होते, क्योंकि बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो आज मेरे सामने दिख रहा है। इसी प्रकार से कुछ उन्होंने बातें की थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि पार्लियामेंट से ज्यादा आज जो मुझे दलित यहाँ दिख रहे हैं, इससे मुझे ज्यादा गौरव होता है, इससे ज्यादा खुशी हो रही है। तो ये जो मकाम पे हम पहुंचे हैं इतनी कठिनाइयों के बाद, इस मकाम को बरकरार रखना, इस मकाम को फाइट करना, ये हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है आज। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा जब ये पैंडेमिक चालू हो गया है, और उसमें आप अगर थोड़ा सा डाटा अगर देखोगे, जो बहुत बार ये डाटा बाहर नहीं आता है, तो कम से कम 40% उद्योग जो है इस महामारी की वजह से उनके बिजनेसेस जो है वो परमानेंटली बंद हो गए हैं। आज के दिन में 40% उद्योग, अभी भारतवर्ष में ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना इटसेल्फ वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द एंटायर इंडियन इकोनॉमी। और जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो गई थी वो इस पैंडेमिक में ऑलमोस्ट 40% अगर ये लड़खड़ा गई है, और 40% लोगों के शटर्स परमानेंटली डाउन हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हमारे इकोनॉमी के लिए है। हमारे भी जो भाई बहन हैं सबके ऊपर ये कठिनाइयां बहुत आ रही है, और ये जो प्रसंग आया है सारे देश के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर, इसमें से बाहर उभरने के लिए काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, आप लोगों के जैसे जितने भी बिजनेस एसोसिएशंस हैं, सारे बिजनेस एसोसिएशंस की तरफ से अलग अलग सुझाव जाते हैं। हमने भी डिक्की के प्लेटफॉर्म से काफी सारे सुझाव दिए थे, और उसका जरूर सरकार ने भी जिक्र करके कुछ पॉलिसीज में चेंज लाए थे। सब कुछ सारे स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, वो इसलिए कि भाई किसी ना किसी प्रकार से हमें इस परिस्थिति को सामना देते हुए इसमें से बाहर आना है, उभर के आना है, और इसके बाद हमको अपने पैरों पे वापस खड़ा होके अपनी प्रोग्रेस, अपनी उन्नति भी करनी है। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि इस पैंडेमिक से जब हम बाहर आएंगे तो अपना फ्यूचर जो है, हर एक का फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा होगा। एक प्रोग्रेसिव फ्यूचर है हमारे लिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है आज कि जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होने की उम्मीद वर्ल्ड बैंक से लेके, आईएमएफ से लेके सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट में भी इसका जिक्र किया है। क्योंकि हमारा जो कंट्री में जो पोटेंशियल है वो ट्रिमेंडस पोटेंशियल है टू कम बैक इन द शेप। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज नई नई ओपन हो जाएंगी, वो भी अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाली है, और उस अपॉर्चुनिटीज का हमें इंतजार है। अब अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट वेव आई थी, अब सेकंड वेव जो है वो उससे ज्यादा ही डरावनी आई है। फर्स्ट वेव में आपने सुना होगा कि हमारे सारे जितने भी लीडर्स हैं, कंट्री के लीडर्स हैं, वो बोलते थे
कि जान है तो जहान है, और इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए हमने बहुत बड़ा एक लंबा लॉकडाउन किया था कंट्री वाइड। उस लॉकडाउन का परिणाम इकोनॉमी के ऊपर बहुत खराब हुआ, बट इकोनॉमी तो हम वापस रिवाइव कर सकते हैं। लोगों की जो जान जाती है उस आदमी को हम रिवाइव नहीं कर सकते। इकोनॉमी बिल्कुल सेटबैक में चली गई। आप लोगों ने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हो, आपने तो बहुत ही खराब दिन देखे हैं, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। फेज 1 जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी हम रादर होपफुल थे कि भाई अब कोविड यहाँ से निकल जाएगा या कोविड से हम बाहर आ रहे हैं, उसी दौरान ये सेकेंड वेव जो आ गई, और सेकेंड वेव ने शायद हम लोगों को कहीं वो कहते हैं ना कि दे कॉट अस ऑन रॉन्ग फुट, कि बहुत ऐसे ऐसे हमको घेर लिया है कि आज बहुत सारी जाने जा रही है हमारे आजू बाजू के लोग जो है। और रोज इनफैक्ट मैं जब भी व्हाट्सएप सवेरे ओपन करता हूँ तो इतने काफ़ी सारे ग्रुप्स में लोगों ने मुझे ऐड कर दिया, तो हर एक ग्रुप में इतने डिप्रेसिव न्यूज़ आती है कि आज ये चला गया, कल वो चला गया। और हमारे बैंकर्स भाई बहनें भी इतनी जाने गई है, कम से कम 1,500 लोगों की जान तो मेरे जानकार लोगों की गई है। इस कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए अब ये हम सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड वेव में तो कठिनाइयां और भी बढ़ गई, क्योंकि बिल्कुल थोड़े दिन हमने हमारे बिजनेसेस चालू किए थे और कुछ ही दिनों में ये बिजनेसेस वापस अब बंद करने पड़ रहे हैं। बट इस वक्त थोड़ा सा सरकार ने एक स्ट्रेटेजी जो बनाई वो थोड़ी सी अलग सी स्ट्रेटेजी है कंट्रोल करने की। इस वक्त सरकार ने नेशनल लॉकडाउन ना करते हुए लोकल या कुछ ज्योग्राफीज में जहां ये केसेस ज्यादा है, ऐसे ज्योग्राफीज में ये लॉकडाउन के सुझाव आ गए। स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने परमिशन दिया था कि भाई आप डिसीजन ले लो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजंस ले लिए, तो काफी सारी डिसएग्रीगेटेड लेवल पे स्ट्रेटेजी करने के बाद ये वापस हम थोड़ा सा अभी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जो पूरे देश का आंकड़ा था 4 लाख से ऊपर हम डेली केसेस हमारे पॉजिटिव निकलते थे, वो कल 2 लाख से भी अंदर आए थे और आज मेरे ख्याल से शायद 1.5 लाख तक आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट है, और इस इम्प्रूवमेंट से जब हम जिस जिस स्टेट में जिस जिस सिटीज में लॉकडाउन्स हैं वो भी निकल जाएंगे, और ये लॉकडाउन जब निकल जाएंगे तब हमें पुनः एक बार ये बिजनेस रीस्टार्ट करने का मौका आएगा। बट हमारे सामने जो चैलेंजेस जो हैं, बिजनेस जब हम रीओपन करेंगे वो चैलेंजेस उतने ही बरकरार हैं। रादर इस वक्त ये चैलेंजेस, पुराने जो चैलेंजेस थे उससे भी कठिन चैलेंजेस हमारे सामने अब आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था आप लोगों के सामने एक 2 प्रकार के चैलेंजेस मेनली आएंगे, एक तो ऑपरेशनल चैलेंजेस और दूसरा फाइनेंशियल चैलेंजेस। परिस्थिति में कुछ चेंज नहीं हुआ है, चैलेंजेस थोड़ा सी तीव्रता चैलेंजेस की जो है वो बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हम अगर जिक्र करें उन चैलेंजेस का जो मैंने पिछले साल आपको बताया था, मैं आपको बता दूं पिछले साल से जैसे ये महामारी का ये संकट आ गया और काफी सारे लोग जब प्रॉब्लम्स में आ गए थे, आपने खुद ने भी देखा होगा बहुत सारे लोग वेबिनार्स ले रहे थे, क्योंकि हर एक आदमी को गाइडेंस की बहुत जरूरत थी। मैंने खुद ने आज तक 40 से ज़्यादा वेबिनार्स किए हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज को वेबिनार किए हैं और लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस किए थे। नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर्स बट बैंकर्स की भी आप अगर देखोगे, बैंक वाले हो, एनबीएफसीज वाले हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वाले हो, वो भी काफ़ी कठिन परिस्थितियों से जा रहे हैं, वो भी काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। एक कोऑपरेटिव बैंकों की एक मुझे रिक्वेस्ट आई थी सारे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की
कि सर हमें आप प्लीज गाइड कर दीजिए, आपका सारा इतना बड़ा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको भी एक वेबिनार जिसमें कम से कम 150 कोऑपरेटिव बैंकों के टॉप मैनेजमेंट के लोग थे, उनको भी मैंने एड्रेस किया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जब मैंने एड्रेस किया था तो कम से कम 400 से ज़्यादा लोग उस वेबिनार को अटेंड किए थे। उसके बाद जो छोटे उद्योजक हैं, जहां BYST करके भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, उनके भी उद्योजकों को मैंने एड्रेस किया था। और पिछले हफ्ते मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी मालदीव्स के बैंकर्स से, कि मालदीव्स के जितने भी बैंकर थे उनके मैनेजमेंट के कम से कम 40 बैंकर्स को मैंने यहाँ से उनको 1-2 घंटे का एड्रेस किया था। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये आप नहीं है, हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट, हर एक व्यक्ति, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस कठिन परिस्थिति से जा रहा है। और इसलिए आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचना है कि भाई ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है या आप अकेले इस प्रॉब्लम से झुंझला रहे हैं। पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से झुंझला रही है। इसलिए आपकी हिम्मत ये बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से और आपको फाइनेंशियल रूप से आपको खुद को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। और जब बिजनेस आपका जो है, एज ए बैंकर मैं देख रहा हूं कि काफी सारे बिजनेसेस हैं जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और प्रॉब्लम्स बिजनेस के क्या है, जैसे मैंने बोला आपके सामने एक तो ऑपरेशनल चैलेंजेस है, आपका बिजनेस ही बंद है, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेटर चैलेंज। जब आदमी का शटर डाउन होता है तो पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। आपके पास वर्कर्स नहीं होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स का एक बहुत भयावह पिक्चर हमने देखा था कि किस प्रकार से वो चल के जा रहे थे। माइग्रेंट वर्कर्स इस फेज में भी, इस वेव में भी काफी सारे चले गए हैं। आपके भी इंडस्ट्रीज होगी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होगी, जो भी आपके उद्योग होंगे, आप भी इसको फेस करते होंगे कि आपके भी वर्कर्स चले गए होंगे। वो वर्कर्स अगेन जहां जहां गए हैं, पिछले वक्त वो थोड़े से ठीक हालात में थे, बट अब क्योंकि ये जो हमारा कोरोना की महामारी जो है, वो अब यूपी, बिहार, झारखंड जहां से ये वर्कर आते थे उस एरिया में, रूरल एरिया में ये फैल गया है। तो हमारे जितने भी वर्कर्स वहां गए हैं वो वहां भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अब जब ये वापस आएंगे, कौन से मानसिक परिस्थिति में होंगे, किस प्रकार से होंगे, क्या कैपेसिटीज होगी उनकी, ये एक बहुत चिंता का विषय है। आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो जितना भी था बिल्कुल कम निचले स्तर पे आप यूटिलाइजेशन होगा। मैं तो खाली रिकैप कर रहा हूं। आप सोचेंगे कि ये तो सारी कठिनाइयां हमको मालूम है, बट ये इसलिए मैं रिकैप कर रहा हूं क्योंकि आप इंडिविजुअल की, एंटरप्रेन्योर की तरफ से जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको जब बताऊं कि ये आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बैठे हुए जितने भी आज, अब मैं देख रहा हूँ 127 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो गए। मुझे जो सामने आंकड़ा दिख रहा है, तो 127 में से 127 सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। ये आपके अकेले के प्रॉब्लम्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं सारे इंडस्ट्री से डिस्कस करते रहता हूँ, उनसे जो फीडबैक आता है उससे मैं आपको शेयर कर रहा हूं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये प्रॉब्लम खाली आप अकेले या आपका बिजनेस है या इसलिए कर रहे हैं। आपको काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती होगी। आपका बिजनेस बंद है, इसलिए आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, कैश फ्लो कम है। आप लोगों ने लोन अगर लिया है तो आपके लोन रीपेमेंट का इश्यू होगा, आपके इंटरेस्ट पेमेंट का इश्यू होगा। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मॉरेटोरियम डाला था तो उसके बीच आपको इंटरेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब मॉरेटोरियम चला गया। अब वापस आपकी रीपेमेंट की जो ऑब्लिगेशंस है वो वापस आपके सामने खड़ी हो गई। आपके पास जितने भी वर्किंग कैपिटल था, आपका जितना भी खुद का कैपिटल था, वो सारा डिप्लीट हो गया होगा। वो सारा आज आपके आंखों के सामने बिल्कुल जीरो हो गया होगा बहुत सारे लोगों का। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा होता है, एक ईंधन जैसा होता है, एक लुब्रिकेंट जैसा होता है जो बिजनेस को चलाते रहता है। लेकिन अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, अगर वो डिप्लीट हो गया, तो आपका बिजनेस शटर जब आप ओपन करोगे तब
उसको चलाने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल चाहिए। वो अगर नहीं है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल फिर लेना पड़ेगा। लास्ट टाइम आत्मनिर्भर पैकेज जब हमारे भारत सरकार ने लाया था, आप सबने आत्मनिर्भर पैकेज भी काफी सारा एक साल में स्टडी किया होगा। हमने खुद इसको डिकी के प्लेटफॉर्म में भी डिस्कस किया था कि आत्मनिर्भर पैकेज क्या है। उसमें आपको अगर याद होगा तो सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए आपके उद्योगों के लिए कंसेशनल रेट पे देने का एक स्कीम लाया था। और उम्मीद ये थी सरकार की, ये स्कीम लाई थी मई में, और उम्मीद ये थी कि कम से कम अगस्त सितंबर तक ये सारा 3 लाख करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर सरकार का आंकड़े देखो उस स्कीम पर्टिकुलरली, तो आज भी एक साल के बाद भी उसमें 2 लाख करोड़ भी डिसबर्स नहीं हुए हैं। उसका कारण यह है कि जैसे मैंने बोला कि काफी सारे उद्योगों के बिजनेसेस बंद हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी उद्योजक बिजनेस कर रहे हैं उनका कहना यह है कि भाई मेरा बिजनेस जो है वो इतना अभी कम हो गया है, तो उसमें मैं अगर मेरे सर के ऊपर और लोन लेके, वो मेरी रीपेइंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा बैठती नहीं है। तो इसलिए काफी सारे लोगों ने लोन लिया भी नहीं, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है तो लोन लेके क्या करेंगे। और जिन जिन लोगों ने वो लोन लिया फिर वो उसी घेरे में आ गए, और काफी सारे आपके जो ओवरड्यूज थे, बैंकों ने भी आपके ओवरड्यूज रिकवर करके ले लिए जब आत्मनिर्भर पैकेज का डिसबर्समेंट दिया था 20% एडिशनल लोन का। तो उससे बिजनेस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली जिस सेक्टर के लिए यह स्कीम लाई थी, उस सेक्टर को इसका जितना चाहे उतना बेनिफिट नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि ये जो डिप्रेस्ड बिजनेस सिचुएशन है उसमें उसका सहयोग नहीं मिला और बिजनेसेस रिवाइव नहीं हो पाए। बहुत सारे अकाउंट्स एनपीए हो गए, बहुत सारे अकाउंट्स SMA 1, SMA 2, SMA, आपको मालूम है SMA 0 क्या होता है, SMA 1 क्या होता है, SMA 2 क्या होता है। और आज बैंकों की परिस्थिति ऐसी है कि आपका अकाउंट जैसे ही SMA 1 कैटेगरी में आ गया, आपके पीछे बैंक वाले लग जाते हैं कि भैया आप देखना आपका SMA 1 कैटेगरी में आया है, भैया देखना आपका SMA 2 कैटेगरी में आया है, इसको जल्द से जल्द सेटराइट करो, जल्द से जल्द इसको ऑर्डर में लाओ, कहीं से भी पैसा लाओ लेकिन आप इसको ऑर्डर में रखो, एनपीए हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट एनपीए हो जाता है, बैंक वाले जो है ना, वो आपको सपोर्ट करना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसलिए उद्योजक चारों तरफ से ये प्रयास करते रहते हैं कि मैं किसी प्रकार से मैं इसको एनपीए ना होने दूं। ये सारी आपकी आपकी जो मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बार बार उसमें प्रयास करता है एक प्रकार का कि भाई कैसे हम उद्योजकों को सपोर्ट करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी सारी लिक्विडिटी क्रिएट की है। आज हमारे कंट्री में फंड्स की बिल्कुल ही कमी नहीं है। आज इतने फंड्स मार्केट में अवेलेबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतनी बड़ी तादाद में लिक्विडिटी है कि हम अगर लोन अगर हम लेना चाहें तो हमें उसकी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अगर क्रेडिट ग्रोथ की बात करेंगे, सारे बैंकों का मिलकर अगर क्रेडिट डिप्लॉयमेंट की आप ग्रोथ देखेंगे तो, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डाटा बाहर आ जाता है एवरी क्वार्टरली, आप लास्ट क्वार्टर का भी डाटा देखिए, ये क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 6% पे 5.5 से 6% के बीच में घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा क्रेडिट डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है और हमारे इकोनॉमी को क्रेडिट डिप्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका आज एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का इंटरव्यू में पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो दिनेश खरा साहब जिन्होंने अभी हाल ही में चार्ज लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है और उसके चेयरमैन जब कुछ कमेंट करते हैं तो उसको एक मायने होता है। उनका कहना यह है कि बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन बारोवर्स जो हैं वो आज लोन लेने के लिए डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। और कुछ हद तक वो भी सही होगा, बट कुछ हद तक ये भी सही है
कि बहुत सारे लोग मुझे भी फोन करते हैं, मुझे भी मिलते हैं, मुझे कि भाई उनके बैंक वाले जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, और बैंक वाले जो है बैंक वाले जो है मुजफ्फरनगर की तरफ और लड़ाई लड़ी जाके हूँ हरियाणा पंजाब में। रिक्वेस्ट है बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। कॉर्पोरेट ऑफिस कैन यू इंश्योर कि सबके माइक बंद हो। सर प्लीज कैरी ऑन। हाँ नहीं ठीक है, वो बीच में आ गया तो मुझे लगा कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था, बट मेरे ख्याल से कुछ उनकी इंटरनल डिस्कशन चालू थी। तो अब सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। सरकार को तो लोगों की जान भी बचाना है और इकोनॉमी का भी ख्याल रखना है। आपने देखा होगा कि इसी महीने में 5 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना दूसरा पैकेज डिक्लेयर कर दिया है आपके उद्योगों के लिए। मैं थोड़ा सा उस पैकेज का भी जिक्र करता हूं कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन फ्रेमवर्क 2.0 करके एक डिक्लेयर कर दिया, उस दिन एक सरप्राइज मूव में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब टीवी पे आ गए। मैंने भी खुद उनका वो कॉन्फ्रेंस भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर उसका सर्कुलर भी मैंने डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था। तो ये 5 मई का सर्कुलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने ये जो स्ट्रेस है, ये जो प्रॉब्लम्स है पर्टिकुलरली स्मॉल बारोवर्स के, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए या उसको क्या क्या दे सकते हैं, इसका जिक्र इस सर्कुलर में हुआ है। और वो सर्कुलर और वो स्कीम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाई है, वो थोड़ा सा आप लोग भी जान लो, क्योंकि जो प्रयास हो रहे हैं वो एक जनरल पैकेज आता है, जनरल स्कीम आती है। अब आपके इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होंगे, आपको सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम के उस पैकेज में, उस स्कीम में ढूंढने हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं और जो स्मॉल बोरोवर्स हैं, यानी कि अपने इंडिविजुअल नाम पे भी अगर आपने लोन लिया है, और वो लोन चाहे वो आपने हाउसिंग लोन के लिए लिया हो, या चाहे आपके किसी और दूसरे कारणों के लिए लिया हो, या आपने बिजनेस के लिए लिया हो, तो वो सारे आपके लोन प्लस जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था, इन लोगों को इस जो स्कीम है इसमें थोड़ी सी रिलीफ उन्होंने देने की कोशिश किया है। स्कीम की एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंडिविजुअल चाहिए या स्मॉल बिजनेसमैन चाहिए, लेकिन आपका जो लोन एक्सपोजर है वो 25 करोड़ के नीचे चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डिक्की के जितने भी मेंबर्स होंगे वो जरूर मैक्सिमम लोग इसमें आ जाएंगे इस स्कीम में। तो इसलिए डिक्की ने भी इस स्कीम का थोड़ा सा स्टडी करके अपने लोगों को सर्कुलेट करना चाहिए। अगर आपको कॉपी चाहिए तो मैं खुद डिक्की के हेड ऑफिस को ये कॉपी दे दूंगा, आप इसको थोड़ा सा आपके मेंबर्स में थोड़ा सा सर्कुलेट कीजिए। इनका कहना यह है कि पिछले पैकेज में जिन लोगों ने रिलीफ के लिए जो भी ये किया होगा, चाहे आत्मनिर्भर भारत में हो या चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पैकेज में हो, तो भी आप इस स्कीम में वापस आप अपने बैंक के पास जाके आप रिलीफ डिमांड कर सकते हैं। इसका एक ये है रिक्वायरमेंट कि आपका अकाउंट शुड बी स्टैंडर्ड अकाउंट, मीन्स आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर आप आत्मनिर्भर पैकेज वापस आप दोबारा अगर सोच लीजिए, तो उसमें एलिजिबिलिटी के लिए उन्होंने ये बोला था कि आपका अकाउंट एसएमए 0 कैटेगरी में चाहिए, एसएमए 1 एसएमए 2 कैटेगरी में आपको वो एलिजिबल नहीं किया था। बट इस पैकेज में उन्होंने आपका अकाउंट स्टैंडर्ड चाहिए ये लिखा है। इसका मतलब आपका अकाउंट अगर एसएमए 2 में भी आता होगा तो भी आप इसको एलिजिबल हो सकते हैं ये रिलीफ के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि भाई आपको रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट या रीपेमेंट जो भी है, इसका मतलब ये है कि आपका लेटेस्ट से कि आपका लोन आपने लिया है, उस लोन को आपको रिपेमेंट करना था लेटेस्ट से 3 साल में या 5 साल में, और आज बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक आप उसको दे नहीं पा रहे लोन को,
तो ये लोन की अवधि आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन उसको उन्होंने लिमिट डाला है कि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन जो है आपके क्रेडिट फैसिलिटी का वो 2 साल का हो सकता है। यानी कि आपने अगर 3 साल के लिए लोन लिया हो तो उसको 5 साल कर सकते हैं, 5 साल का लिया हो तो उसको 7 साल कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि ये आपको एक्सटेंशन मिलने के बाद उसका ईएमआई भी कम हो जाएगा। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ये बोला है कि आपके अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक स्कीम आप अप्रूव कर लीजिए जिसमें आप ये सारे रिलीफ दे सकते हैं। उसमें अगर जरूरत पड़े तो उन्होंने 2 साल तक मॉरेटोरियम भी देने की प्रावधान रखा है। इसका मतलब है कि आपका खाली पीरियड ही नहीं बढ़ेगा लेकिन आपको मॉरेटोरियम भी मिल सकता है, और वो मॉरेटोरियम इंटरेस्ट का भी हो सकता है और प्रिंसिपल का भी हो सकता है। लेकिन आपने अगर पहले स्कीम में अगर मॉरेटोरियम लिया है, लेटर से आपने पहले 1 साल का मॉरेटोरियम लिया था, तो आपको और 1 साल का मॉरेटोरियम मिलेगा। जिस एंटरप्रेन्योर ने कुछ भी मॉरेटोरियम नहीं लिया था तो उसको 2 साल का पूरा मॉरेटोरियम मिल सकता है। फिर इसमें आपका ये भी हो सकता है कि आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन जो हो, आपके इंटरेस्ट जो आपके अकाउंट को लगा है और वो आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन किसी कारणवश आपके पास अगर फंडिंग की क्रंच है, आपको प्रेशर है और इंटरेस्ट पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तो उस इंटरेस्ट पेमेंट को आप डेफर करके उसको फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन करके भी हम उसको डिमांड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो रीपेमेंट है उसके ऊपर से प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हम डेफर कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग आवर इंटरेस्ट ड्यू इनटू फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। फिर इसमें जैसे मैंने बोला कि आप जैसे आपके शटर्स ओपन करोगे तो आज बहुत सारे लोगों को वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बिजनेसेस बंद होने के कारण आपका जितना भी नुकसान हो गया, लॉस हो गया, उसमें काफी सारा वर्किंग कैपिटल आपका खत्म हो गया होगा। वर्किंग कैपिटल से आपका एक जो रिसीवेबल्स होते हैं वो रिसीवेबल्स भी आपके अगर कहीं से स्टकअप हो गए हैं, उसकी वजह से भी आपको अगर रिपेमेंट नहीं मिल रहा है, सॉरी वर्किंग कैपिटल में उसका काउंटिंग नहीं हो रहा है, तो भी आपका डिप्लीशन हो सकता है। तो इस स्कीम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है बैंकों को कि हर एक एंटरप्रेन्योर का आप दोबारा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कीजिए, रिवाइज कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आप आपके बैंकर्स के साथ बैठ के आपके जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो एग्जिस्टिंग आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है, उस एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल के हिसाब से आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसको रिवाइज कर दें, ठीक है। तो ये और एक उसमें सहूलियत दिया है। मित्रों 1 मिनट रुकना जरा, अगर खाली कर जरा होने थे तो ना। फिर उन्होंने बैंकों को ये भी बोला है कि भाई बैंकों को उन्होंने ये भी बोला है कि आप एडिशनल फंडिंग कर सकते हैं सारे लोगों को। मींस आपने अगर लेटर है कि 10 करोड़ आपने लोन लिया होगा, आपको एडिशनल फंडिंग की जरूरत है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, टर्म लोन की जरूरत है, तो भी आप इसको इस स्कीम में आप उद्योगों को दे सकते हैं। तो एक एडिशनल फंडिंग आपको मिलेगा, और वो जो एडिशनल फंडिंग है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सजेशन है, या तो आप इक्विटी के तौर पे दीजिए या तो आप उनको डेट के तौर पे दीजिए। यानी कि अगर आपके इक्विटी कैपिटल में भी बैंक पार्टिसिपेट हो सकता है, बट ये बैंकों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि छोटे उद्योगों के लिए इक्विटी में पार्टिसिपेशन करना बैंकों के लिए भी उतना इजी नहीं होता है। इसलिए शायद वो आपको इक्विटी थ्रू नहीं देंगे, बट शायद आपको काफी सारा लोन आपको उसमें से मिल सकते हैं। इसमें आपका जो एसेट क्लासिफिकेशन है ये एक प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है,
और आपको मालूम होगा या मालूम नहीं भी होगा शायद कि जब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसेट क्लास पे ये रिस्ट्रक्चरिंग करता है, जब जब कोई भी बैंक, तो उस अकाउंट को एनपीए करार किया जाता है जब रिस्ट्रक्चरिंग होता है। लेकिन इस स्कीम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग भी किया तो भी आप इसको स्टैंडर्ड में ही रखेंगे। तो किसी का अकाउंट जो है वो एनपीए नहीं होगा। अगले कम से कम 2 साल तक तो ये रखना चाहिए, बट उसमें प्रावधान ये नहीं है, उसमें उन्होंने इतना ही लिखा है कि उसको आप एनपीए रिस्ट्रक्चरिंग किया इस वजह से मत करना। तो इसका आपका क्लासिफिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड रह जाएगा। उन्होंने ये भी बोला है, और ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, मैं जो बताने जा रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम ये बोलती है कि आपने ये जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह जो भी करना है, ये जिस दिन आपने मीन्स बैंक ने, जिस दिन बैंक ने ये डिसीजन ले लिया कि आपके अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, डिस्कशन आपने चालू किया, बैंक ने देखा कि हाँ हम कर सकते हैं इसको, फिर 90 डेज के अंदर आपको उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करके देना है। और ये 90 डेज का पीरियड जो है उसमें अगर किसी कारणवश आपका अकाउंट एनपीए हो गया, 90 डेज के ये प्रोसेस के अंदर आपका अकाउंट अगर एनपीए हो गया, तो भी इस अकाउंट को रिलीफ देके, एडिशनल फंडिंग देके, जब ये रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तब उसको वापस स्टैंडर्ड किया जाएगा। लेकिन उसमें एक ही है कि ये रिलीफ मिलने के बाद, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होने के बाद, आपको ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि ये अकाउंट स्टैंडर्ड रखना। इस अकाउंट को अगर उसके बाद अगर एनपी हो गया तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो ये सिचुएशन जो है वो आपकी कोविड की वजह से हुई है। ये सब सोच के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इसी महीने काफी सारे बैंक्स एक्चुअली आज अपने अपने बैंकों के अपने अपने बोर्ड के पास जाके ये स्कीम्स बना रही है, जो आपके लिए लेके आएगी। लेकिन इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आज ये सोचा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको इसकी जानकारी दूं, क्योंकि ये जानकारी, ये सर्कुलर्स खाली बैंकों के पास जाते हैं और ये सर्कुलर्स आप लोगों के पास नहीं होते। हालांकि ये सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं जाता। सो आई थॉट मैं थोड़ा सा इसको आपके साथ शेयर कर लूँ, इस सारी इंफॉर्मेशन को। तो दोस्तों, काफी सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। जब हम सरकार के पास जाएं कि भाई हमको और क्या सहूलियत चाहिए, हम क्या मांग सकते हैं, थोड़ा सा जब मैं सोचता हूँ छोटे उद्योजकों के लिए, स्मॉल बोरोर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो डिक्की के प्लेटफॉर्म से हम वापस एक बार जो डिमांड सबमिट कर सकते हैं आप लोग सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वो ये है कि भाई ये जो पैंडेमिक है कोविड का, इसका पीरियड तो आज भी अनसर्टन है। आज भी किसी को मालूम नहीं है कि ये पैंडेमिक का कितना वेव आने वाला है। अब हम लोग थर्ड वेव की बात कर रहे हैं कि भाई थर्ड वेव आएगी, वो इससे भी ज्यादा भयावह होगी। अब किसको मालूम नहीं है कि ये कैसे कंट्रोल किया जाए। सब कुछ ट्रायल एंड एरर पे चल रहा है, काफी सारे हमको उसमें सक्सेस मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग से सक्सेस मिल रहा है। जो लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप उनको अगर पूछे कि भाई आपको क्या मेडिसिन दी थी वहाँ पे, तो आपको ये भी सुन के शॉक हुआ होगा कि अंदर जाने के बाद मेडिसिन ऐसे कुछ देते ही नहीं है। जिस आदमी को ऑक्सीजन पे हो, वेंटिलेटर पे हो, नॉर्मल सी हमारे जो भी वायरल की वगैरह जो मेडिसिन होती है, या कोई स्टेरॉइड्स वगैरह देके उनको उनकी जो हेल्थ है उसको बरकरार रखने के लिए कोशिश होती है। बट आज भी कोई ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकता है कि भाई ये मेडिसिन कोविड के ऊपर है। हालांकि अभी हमारे सरकार के ही एक जो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक
को एक एक मेडिसिन लाया है, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच कि उसका कितना इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये पीरियड जब अनसर्टन है, सबको दिख रहा है कि कब तक ये फिनिश हो जाएगा, कब लोगों के बिजनेसेस चालू हो जाएंगे, कब हम वापस हमारे पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो एटलीस्ट जब तक ये पैंडेमिक चालू है, वो पीरियड जो भी हो, आज से 1 साल हो, 2 साल हो, जो भी है, अगर 6 महीना हो, 3 महीना हो, तो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड प्लस नेक्स्ट 2 इयर्स एटलीस्ट, क्योंकि जब हम इसमें से बाहर आएंगे दोस्तों, तो कम से कम साल से 2 साल लगेंगे हर एक आदमी को अपना अपना बिजनेस वापस सेटराइट करने के लिए। तो इन नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स एटलीस्ट एक रेगुलेटरी फॉर्म में हमको अगर ये प्रोटेक्शन मिले सारे लोगों को कि भाई ये कठिन दौर से जबकि हम जा रहे हैं, तो अकाउंट किसी का भी एनपीए ना डिक्लेयर करें। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि आप अगर अकाउंट को एक इतना सा अगर प्रोटेक्शन दे कि मेरी जो जो ऊंच नीच होने वाली है, मेरी जो कैश फ्लो या मेरे को जो कठिनाइयां आने वाली है आपके रिपेमेंट करने के लिए, उसमें आप अगर मेरा हैंड होल्डिंग कर दे और अगले 2 साल के लिए एटलीस्ट मेरा अकाउंट किसी भी हालात में इसको अगर एनपीए ना रखे, तो इसका फायदा आपको भी होगा और उसका फायदा बैंक वालों को भी होगा। क्योंकि बैंक वाले क्या होते हैं कि वो भी डर जाते हैं जब आपका अकाउंट एनपीए हो तो आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन ये अकाउंट अगर एनपीए नहीं हुआ तो बैंक वाला भी आपको एक हैंड होल्डिंग कर सकता है। दूसरा मेरा ये होगा कि आपके काफी सारे लोगों से जितने भी आपने कैपिटल लगाया होगा, शुरू में जैसे मैंने बोला कि आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे, आपके फैमिली में आपने पहली बार बिजनेस चालू किया होगा, फैमिली से जितना भी कैपिटल है आपने कैपिटल लगाया होगा और आपका बिजनेस लॉसेस में जाने की वजह से वो कैपिटल अभी बर्न आउट हो गया। तो भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट्स की जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, उनकी तरफ से, जैसे महाराष्ट्र में एमआईडीसी की तरफ से सीड कैपिटल दिया जाता था, उस प्रकार से अगर हम सरकार से बोले कि भाई हमारी जो कैटेगरी है वो अलग कैटेगरी है, बाकी मैं बताऊं आपको जो बिजनेसमैन है जिनको जिनकी जनरेशन से बिजनेस चालू है, जैसे आपने काफी सारे आपके जो ग्रोसरी वाले होंगे, मारवाड़ी लोग होंगे, उनके उनके तो जनरेशन से बिजनेस आते हैं, उनको तो उनका कैपिटल तो उसी में लगा रहता है, उसमें कैपिटल का काफी सारा उन्होंने मल्टीपल भी किया होता है। लेकिन ये हमारा जो समाज है, पहली बार हम एंटरप्रेन्योरशिप में उतरे हैं, पहली बार हमने कैपिटल लगाया है, वो अगर बर्नआउट हो गया है तो हमें एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री सीड कैपिटल अगर मिल जाए कि जिसको आप हमें सीड कैपिटल करके दे दो, उसकी कंसेशंस, उसकी जो कैलकुलेशंस है, दैट एनीबडी कैन वर्क आउट एंड गिव देम कि भाई अगर इतने का बिजनेस है, इतने का टर्न हो रहा है, तो सर्टेन परसेंटेज शुड बी गिवन एज अ सीड कैपिटल, रिफंडेबल सीड कैपिटल वी कैन डिमांड, इट्स नॉट ओनली दी नॉन रिफंडेबल, बट उस सीड कैपिटल को वापस करने के लिए हम अगर 5 साल का लॉक इन पीरियड रखें कि आज आपने मेरे को अगर 10 लाख रुपए कैपिटल दे दिया, तो वो 10 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री मैं अगले 5 साल यूज करूंगा, जब मैं मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा 5 साल के बाद मैं उसका रीपेमेंट चालू कर दूंगा। आप कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी हम डिमांड कर सकते हैं आपके फोरम से कि भाई, क्योंकि ये एक अनोखा दौर से सारे लोग गुजर रहे हैं, इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंसेशनल, और वो कंसेशन देते समय इसमें अगर इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप से अगर वो कंसेशन दिया जाए, तो फिर ये जो बैंक वाले हैं, बैंकों के ऊपर भी इसका फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा और सरकार ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू इसको सरकार बैंकों को भी सपोर्ट कर सकती है, आप लोगों को भी सपोर्ट हो सकता है। और एक आखिरी बात, जो उद्योजक बिल्कुल ही इस परिस्थिति में नहीं है कि वापस अपना बिजनेस चालू कर सके, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि 40% उद्योजकों के बिजनेसेस आज बंद हो गए हैं। आज अगर उनका लोन अगर सेटल करना है बैंक के साथ, तो बैंकों ने उसको थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड लेके
उनको अगर एक वन टाइम सेटलमेंट का मौका देके उनके लोन्स अगर एक अच्छे से अच्छे टर्म्स पे जितना हो सकते उतनी मैक्सिमम कंसेशंस देके अगर बैंक उनको सेटल कर सकता है तो बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है जो आज इस कर्ज में इस डेट में डूबे हैं वो उसमें से बाहर आ सकते हैं। आप अगर देखोगे बड़े बड़े उद्योगों का आज अगर एनसीएलटी में किसी का केस जाता है, मैंने ऐसे भी काफ़ी सारे केसेस देखे हैं कि 1-1 लाख करोड़ का लोन है लेकिन एनसीएलटी में जाने के बाद 20,000-30,000 करोड़ में वो सेटल हो जाता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 60-70% उनको राइट ऑफ किया जाता है। तो ये अगर बड़े उद्योगों के साथ अगर हो सकता है लोन सेटल करते समय तो क्यों ना हम स्मॉल बारोर्स के लिए भी वही मानदंड लेके उन सरकार की तरफ डिमांड कर सकते हैं कि जिस किसी को भी अपना बिजनेस वापस शुरू करना बहुत कठिन है और वो अगर अपना बिजनेस बंद करना चाहता है तो उसके पास जो भी पैसा है वो लेके उसको कर्ज से मुक्ति दिला दे और उसके बाद उसके ऊपर कहीं भी ये ब्लॉट न रह जाए कि इस आदमी ने ओटीएस लेके बंद किया था। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप जब ओटीएस में आप जब आपका लोन सेटल करते हैं बैंकों के साथ तो ये आपके सिविल के रिकॉर्ड में चला जाता है और सिविल में जब भी आपके रिकॉर्ड में ओटीएस करके रिपोर्टिंग हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपको पूछेंगे, आपको लोन देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि वो बोलेंगे आप पहले डिफॉल्टर हो और आपने ओटीएस किया है। हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि हमने अगर ओटीएस इस दौरान किया है, इस पैंडेमिक की जो अनप्रेसिडेंटेड है, सारे विश्व में है, तो इस ओटीएस का जो जिक्र है वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये छोटी सी मेरी सुझाव है, आप इसके ऊपर गौर करें। और मैं आप ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। एक 5 मिनट के लिए एक बायो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ये सेशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर देंगे। ठीक है जी? Right, sir. Thank you, sir. We can take a bio break. तब तक I think Chairman sir is here. तब तक he can also address others, and then we'll take a question answers after 5 minutes. करेक्ट। सो लेट अस, बिकॉज अभी सब लोग काफी सारे बोर हो गए होंगे सुन सुन के ना, तो थोड़ा सा नहीं, बायो नहीं, ब्रेक sir. लेने से मेरे ख्याल नहीं, से। sir. आप लीजिए सर, चेयरमैन सर हैं तो थोड़ा चेयरमैन साहब जितनी देर एड्रेस कर देंगे यस यस, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा सा बायो ब्रेक लेता हूँ। सर. I would request our founder chairman Padma Shri Dr. Milind Kamble ji to address the members. Chairman sir. Anyway, जब तक चेयरमैन सर आते हैं, सर ने बताया बहुत कुछ हमें कि क्या चल रहा है अभी तक, क्या नहीं चल रहा है. He spoken about moratorium, ये 1 साल का जो मिला था बीच में 1 साल का, और आरबीआई ने बोला है बैंक्स को इंटरेस्ट पेमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, नॉट द प्रिंसिपल बट इंटरेस्ट पेमेंट डिफरमेंट की बात करी है सर ने, कि जो फंडेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है. हेलो सर. Sorry, वो chairman sir was trying to connect, तो join नहीं कर रहे हैं. Manjul, can you just follow up and see sir is able to join, or can you just unlock the meeting for a while till he joins? So he is here in the room. He is there. अच्छा, there he is there. तो चेयरमैन सर भी आ गए हैं हमारे बीच में. तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि फराज साहब ने कहा इंटरेस्ट पेमेंट भी डिफरमेंट की बात चल रही है, जो कि फंडेड इंटरेस्ट में चेंज करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी नीड बेस जो आपकी साइकिल हो उसके अनुसार. और बैंकों को कहा गया है कि रिस्ट्रक्चरिंग अगर आप करें लोन्स की तो
आप एनपीए न करें, उन्हें स्टैंडर्ड ही रखें। बाकी सर के जो कुछ सजेशंस थे सीड कैपिटल के लिए, और आई थिंक चेयरमैन सर इज हियर। सर इफ यू आर हियर कैन यू एड्रेस सर? राज साहब का एड्रेस पूरा हुआ है अभी, एंड वील स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। यस यस यस, आप एक बार एड्रेस कर दीजिए सर पहले, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करें। हाँ क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। सर वो आ रहे हैं खराज साहब, खराज साहब 5 मिनट की ब्रेक के लिए गए हैं। तो ठीक है, तो मैं जस्ट रिकैप ही कर रहा था सर कि क्या क्या खराज साहब ने बोला। अभी जो आरबीआई ने कुछ जो ये सेकेंड कोविड वेव के बाद में कुछ बैंकों को सजेशन दिए हैं, जिसमें मॉरिटोरियम बढ़ाने के लिए 1 साल का और देने के लिए कहा है। जिन्होंने लास्ट ईयर अवेल नहीं किया था वो भी कर सकते हैं अवेल, और इंटरेस्ट पेमेंट में भी डेफरमेंट ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए नीड बेस्ड बैंक कंसिडर कर सकता है, और रीस्ट्रक्चरिंग करता है तो वो एनपीए नहीं हो, ऐसा बैंकों को कहा गया है। बाकी कुछ सजेशंस थे फराज साहब के कि हम सीड कैपिटल की मांग कर सकते हैं, जैसे कि कई स्टेट्स में होता है, एमआईडीसी देती है, और भी कई स्टेट्स में है। एंड एज वी आर ऑल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, unlike others in business who are there in the business for generations, and they already have the capital or they have the reserve, and we can also ask for seed capital in refundable bhi mang sakte hain, that 5 years down the line we can refund the seed capital. And also concessional rate of interest. A lot of states already have concessional rate of interest as interest subvention, but we can ask that from the central government as well. अभी जो सिर्फ 2% मिलता है एमएसएमई को। एंड सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जितने भी बड़े बोरोवर्स हैं, व्हेन दे आर अनेबल टू रीपे, दे गो इनटू एनसीएलटी अकॉर्डिंग टू द न्यू बैंकरप्सी लॉज, एंड इट हैज सीन दैट ऑन एन एवरेज 60 to 70% डिस्काउंटिंग में वो राइट ऑफ हो जाता है उनका लोन, नॉट जस्ट द लोन प्लस जो भी क्रेडिटर्स को मिलता है। तो वाई कांट जो अभी जो कुछ एसएमईज हैं जो बंद हैं या जो नहीं शुरू हो पा रहे हैं डिस्पाइट लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो बैंक शुड बी कोऑपरेटिव एट दिस टाइम एंड कम आउट विद वन टाइम सेटलमेंट। और वो भी अगर कोई 60-70% का या 50% का, वट एवर द केस मे बी ऑन नीड टू नीड बेसिस, अगर ऐसा कुछ करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं। सर, चेयरमैन सर। खराज सर का मैंने बहुत सारा सुना है, इनिशियली कुछ सुन नहीं पाया, मगर बहुत ही डिटेल सजेशंस और जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का विश्लेषण खराज साहब ने किया है। तो देखिए, अभी हम डिक्की की ओर से ये जो एक्सपर्ट डायलॉग सीरीज जो शुरू की है, उस सीरीज का ये पहला सेशन था, जिसमें हमारे डिक्की के एडवाइजर भी हैं खराज साहब, और एक बहुत बड़े बैंकर, यानी कि बैंक में एज अ कैशियर ज्वाइन होना बैंक ऑफ बड़ौदा में, और उसी बैंक के जीएम बनना, फिर उसके बाद में दूसरे बैंक के ईडी, आईडीबीआई के एमडी, फिर उसके बाद में इंडियन बैंक के एमडी, यानी कि ऑल लेवल का एक्सपीरियंस जो है खराज साहब के पास है। तो उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, जो आखिर बैंक जो है, बैंक के भी कुछ प्रॉब्लम्स है। बैंक ने जो हमको लोन दिया है, तो उनके पास कोई जो डिपॉजिटर है उसने पैसा रखा है, उसी पैसे को बैंक हमको देती है। तो बस आज बैंक के सामने भी जो डिपॉजिटर्स है, उस डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देना जो है वो हम जब रीपेमेंट करेंगे तभी वो दे पाएंगे। तो ये ऐसे एक बहुत विचित्र सी सिचुएशन आज हमारे देश में बैंक के सामने भी खड़ी है, और
एज पर एंटरप्रेन्योर्स और एसएमई एंटरप्रेन्योर्स इज कंसर्न, उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। मैं अभी किसी इसमें था सेमिनार में और मैं सुन रहा था किसी का, तो उन्होंने ये कहा कि बैंक को आप दुश्मन मत समझिए, बैंक को आप आपका दोस्त समझिए और उनसे दोस्ती करिए, उनको जो सच है, रियल चीजें हैं, वो उनको बताइए, ताकि आपकी दोस्ती अच्छी होगी और वो भी समझते हैं, वो भी जानते हैं सिचुएशन क्या है। तो यह वास्तविकता है। मगर इस पैंडेमिक ने जिस टाइप से लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमारे नजदीक के पहचान वाले फैमिली में, तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए हैं। दूसरी बात, बस लास्ट ईयर का ही सीन इस साल बना रहा। लास्ट ईयर भारत सरकार का लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें हुई, आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेके सब चीजें जिसका जिक्र हुआ। मगर अभी जो है सिचुएशन अभी ऐसी है कि सिमिलर सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी है, बात तो आके खड़ी हुई है। तो यह इसको देखते हुए हाँ, हम सब उद्यमियों को बहुत ज्यादा बैलेंसिंग एक्ट जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के, जैसे खरात साहब ने कहा कि 40% के अराउंड इस देश के जो स्मॉल बिजनेसेस है वो बंद होने के कगार पे आए हैं, ये सच है। लगभग 20% एसएमई अकाउंट्स जो है वो एनपीए होने को आए हैं, ये तो वास्तविकता है। और इससे अगर हमको आगे बढ़ना है तो अभी आरबीआई को हमने कुछ सजेशंस दिए हैं। कुछ दिन पहले आरबीआई के साथ एक मीटिंग हुई, मैं उस मीटिंग में था, तो बहुत सारे सजेशंस हमने आरबीआई को दिए हैं। और जैसे खरात साहब ने कहा, 5 मई को जो नया सर्कुलर आया है, वही दैट इज एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आपको जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग था उसके ऊपर जो 20% आपको लास्ट टाइम जो मिला था, तो सिमिलर आपको 20% और मिलेगा। आप बैंक में जाके वो जो सर्कुलर है संजीव सर, वो सर्कुलर आप हम सबको सर्कुलेट करेंगे अपने ग्रुप के ऊपर, वो सबको मिलेगा। तो जितना हो सकता है हम सेविंग करें, बचाए बिजनेसेस को थोड़ा, जिसको ट्रॉमा मैनेजमेंट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी एग्जैक्टली ट्रॉमा मैनेजमेंट की जरूरत है। इसके ऊपर एक अलग से सेशन हम करेंगे, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन एंड व्हाट इज अ ट्रॉमा मैनेजमेंट। तो वो करने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। फिर भी देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री में है। और जो सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर अभी हमने एक सीरीज बनाई है, जिसमें जो मैन टू मैन कांटेक्ट वाले जो सर्विसेज है, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। जैसे टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड होटलिंग, यह बिजनेस लास्ट 1 साल से बिल्कुल उस बिजनेस का ऑन डेथ बेड जिसको हम बोल सकते हैं। और इससे अलाइड जितने लोग हैं, होटल इंडस्ट्री 30% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी है नहीं, इतने सारे लोग एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, उन लोगों के मैंडेटरी ईएसआई, पीएफ, होटल का लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस, आपके पास एक्साइज का लाइसेंस है तो एक्साइज लाइसेंस रिन्यू, चाहे आपका लिकर का सेल हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सब चैलेंजेस है इसके ऊपर जो ये इंडस्ट्री है, टूरिज्म, ट्रैवल और होटलिंग। अभी देखिए टूरिज्म में जो आइटा से जो रिलेटेड जो लोग हैं, यानी कि जो टिकट बुकिंग करने वाले लोग,
जो छोटे छोटे ऑफिसेस लगा के जो स्मॉल बिजनेसेस वाले जो बैठे हैं टिकेटिंग करने वाले 2 लोग 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है ज्यादा। इंटरनेशनल ट्रैवल तो लगभग लास्ट ईयर 1 ईयर लोग गए नहीं। बहुत कम लोग अपने बिजनेस या कॉलेजेस की वजह से बच्चे इधर उधर गए होंगे, बस उतना ही। तो ये जो टिकेटिंग वाले हैं, अभी जैसे दिल्ली हो, पुणे हो, बॉम्बे हो, बड़े बड़े शहर में जो छोटे छोटे टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट को लेके आगरा जाना है, जयपुर से लेके बाकी सब जो टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो जिन्होंने 2 कार 3 कार ली है, और जो छोटे टूर ऑपरेटर है, बिल्कुल ये मैन टू मैन कांटेक्ट वाले सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। तो बस इनके बिजनेसेस बिल्कुल चौपट हो गए हैं। तो ऐसी जो कहानी है, फिटनेस, सब जिम बंद है और बहुत सारे हमारे लोग जिम लगा के बैठे हैं। फिटनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, ये जो क्लोज कांटेक्ट वाले जो ये बिजनेसेस है, ये तो पूरे बंद होके पड़े हुए हैं। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस में एजुकेशन इंडस्ट्री, जो एजुकेशन इंडस्ट्री तो हम अभी देख ही रहे हैं पूरे देश भर में। 2 1.5 साल हो गया अभी। मेरे बहुत सारे पहचान वाले लोग हैं, लास्ट 1 ईयर कॉलेज नहीं जा सके, ऑनलाइन एग्जाम हो गई, अभी कुछ लोगों की एग्जाम हो गई, तो लगभग ये एजुकेशन इंडस्ट्री बंद जैसे पड़ी हुई है। तो यह सब सिचुएशन हमारे देश में है। तो मुझे लगता है कि आज हमने डिक्की ने एक सर्विसेज के ऊपर एक सीरीज जो है बनाई हुई है। सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ सेक्टर जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, और उसमें मैन टू मैन कांटेक्ट वाली इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। और इस इंडस्ट्री में ओवरऑल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो नेचुरली सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग से, और इसकी वजह से इफेक्ट जो है SC ST उद्यमियों को बहुत ज्यादा हुआ है। और मुझे एक बात का यहाँ पे सबको ध्यान में लाना है कि जिस प्रकार बैंकों का सपोर्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इसको होता है, तो उस प्रकार का सपोर्ट जो है सर्विस इंडस्ट्री को नहीं होता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है जो हम लगातार सरकार के साथ भी बात कर रहे हैं, अभी सीरीज में हम बात करते रहेंगे। तो यह लगभग ऐसी सिचुएशन हमारे देश में आके खड़ी हो गई है, मगर हम उद्यमी हैं, इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट पैंडेमिक के बाद में हमारी जो इकोनॉमी है वह वी शेप, दुनिया में सबसे ज्यादा उभर के हमारी इकोनॉमी पैंडेमिक के बाद आई थी। अगर आप टैक्स कलेक्शन अगर देखेंगे, GST कलेक्शन मार्च तक का, तो कंटिन्यूअस वो बढ़ते जा रहा था। तो यह एक सिचुएशन जो बाउंस बैक जिसको हम कह सकते हैं, वो बाउंस बैक हमारे उद्यमियों ने किया था, और सिमिलर हम लोग अभी भी बाउंस बैक करेंगे ऐसे मुझे लगता है। बस पेशेंस से हमको काम करना पड़ेगा, और उससे अगर हम काम करेंगे तो बस बिल्कुल इस संकट की घड़ी में भी हम लोगों को बस डिक्की प्रयास कर रहा है। बहुत सारी चीजें सरकार की ओर से कंसेशन और ये सब इसके बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा उभर के आएगा, ऐसे मुझे लगता है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. We'll now move ahead with the question and answers. जिनको भी कुछ सवाल पूछना है, निवेदन है कि चैट बॉक्स में डाल दें। एक एक करके सबके सवाल पूछे जाएंगे, नहीं तो सब एक साथ पूछेंगे, प्रॉब्लम रहेगी। So it is my humble request for everybody to put their questions in the chat box, and I would request our National Vertical Head for Banking and Finance, Mr. Manjul Kumar, to conduct the question and answer session. Manjul, over to you. थैंक यू सर। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कृपया चैट बॉक्स में उसे मेंशन करें।
Daljim, I am Perumal from Bangalore. Yes, please. See, I am not able to put in the chat box. Can I able to talk to Karatji? Yes, yes, yes. Please go ahead. Please, sir. Please, sir. Yeah, sir. Good evening, sir. Karatji, I am Perumal from Bangalore, the past president of Dicky, Karnataka. Yes, Mr. Sir, Parimal, go ahead. sir, my question is, sir, regarding this CIBIL, none of the finance ministry is taking any steps. I have given a representation to the Honorable Finance Minister when she came to Bangalore. Someday, sir, for example, sir, somebody has settled the loans with the negotiation. Unfortunately, that has been reflecting for the last 3 years. And the CIBIL ratings are held up there only as it was there. Even after settling the account with the negotiation, still the CIBIL rate is showing very less only. There is no improvement in spite of last 3 years. So my request is kindly advise me how to take it up, or if you throw some light, I'll be very happy to know that. Because people are approaching me, I have to give them some idea. No, But you in have spite of to see one thing I will tell you. CIBIL shows your financial discipline, particularly in short, how you had maintained your financial discipline, and if you had faced any problems, normally it gets reflected because this is the one record from where, and this is centralized record for almost for everybody. Through this record only, it reflects what had happened in your account. If this was not there, now in CRILC system also, Reserve Bank of India's CRILC system, but that is for the bankers to report in CRILC. So other than CIBIL, there is a internal reporting system to the Reserve Bank of India, which is a CRILC. In both the systems, whatever happens in the account, it will get reflected and it cannot be changed. This will remain as a historical event that can never be removed. That is why I said, when I was saying if somebody is doing OTS during this pandemic, as a special case, very, very, very special case, that should not be noted on the CIBIL. That is what was my suggestion, because CIBIL gets noted everywhere, whatever events are happening in your financial matters. So therefore, you will have to talk to CIBIL. But one thing is there, if account was settled through OTS, through some settlement, that is a historical event which will remain on the CIBIL record, and anybody wants to see that, CIBIL will keep on showing that. And it is not happening only for this particular account. This is a normal, it's a regular norm of the CIBIL. then how to overcome, sir, this problem? It will be there for how many years? It will be there. No, see, as I told you, this is a historical event. It will not go from there. I am agreeing with you, but how long this can be negotiated settlement? How long can it reflect? And the benign, the businessman is not able to do the business because of this. No, it is not like that. Even if your account was, let us say, negotiated settlement was done, and if you are going to the banker and if you are convincing that, okay, that was there earlier, but now we are having, this is a business model which is going to be there. But one thing is there, it's a human tendency. Immediately, if you are going, once you are doing a negotiated settlement here, and within a shortest time, if you approach any other bank or financial institutions, they will be a little cautious. But if, as I said, if you are in a position to convince the banker or the lender that that was a different situation, under certain circumstances you had to resort for negotiated settlements, but now the situation is different. Whatever you are taking the project, if that project is good and if it is a convincing, then the banker also, while doing internal approvals, doing internal assessment, or you can say when they do the project appraisal, in that they write a CIBIL record says like this. However, in these circumstances, we recommend sanction of the fresh facilities. So it depends on case to case basis. Okay, sir. Thank you very much, sir. And apart from I don't want to take much time. Please kindly share your telephone number so that we can talk to you at leisure to you. Now I don't want to spoil others' questions.
Thank you very send, much, sir. I will ask Dangi to share it with you. Thank you very much, sir. It's very nice of you on the meeting. Thank you very much, sir. Thank you so much, Mr. Perumal. Thank you, Perumal sir, for the question. We have another question from Mr. Jay Prakash. उनका सवाल ये है कि क्या BLTT वालों को भी स्कीम का फायदा मिलेगा? तो BLTT क्या है? सर बल्क LPG ट्रांसफर, बल्क LPG ट्रांसफर, जो ईंधन वाहन स्कीम जो था सर इंडियन बैंक right. का. So as I said, Reserve Bank of India, when they are coming out with the scheme, there is no distinction insofar as sectors are concerned. As long as you are falling within the small business category, you will be eligible. सिमिलरली सर AK आनंद जी हैं लखनऊ से. उनका सवाल है कि सर हमने 35 लाख लोन 2019 में लिया था, वो घटकर 29 लाख आउटस्टैंडिंग हो गया था. फिर जुलाई 2020 में उन्होंने 20% लोन जो था वो लिया था. टोटल आउटस्टैंडिंग आज की डेट में 36 लाख है. उनका सवाल ये है कि कैन आई अवेल द लोन रीस्ट्रक्चरिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज 36 lakhs? No, come back again. थोड़ा सा बीच में आवाज गायब हो गया था. 2019 a loan was taken for 35 lakhs, which Okay. of which the outstanding remained was 29 lakhs. Again in July 2020 जो कोविड का जो 20% वाला जो स्कीम था उसमें उन्होंने 20% लिया था. The total outstanding today is 36 lakhs. He is inquiring whether under the current scheme he can go for loans restructuring. जैसे मैंने बोला, ऑब्वियसली लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, 100% लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है. सेकेंडली, इफ योर बिजनेस इज justifying the demand for additional funding, and if you are able to convince your bankers, convince your lenders, they will give you additional loan. There is no bar that because you had taken earlier 20%, so this time you should not be given. Otherwise, RBI would have noted that in their circular that those who have taken 20% will not be eligible. Since they are not mentioned, and specifically they have mentioned in the circular that you will be eligible for additional funding. Now here, they have not put any percentage. That additional funding, you will have to work out for yourself what is the minimum requirement for you, and then you should be in a position to approach your banker and convince them that this is what is my additional requirement and please sanction that. Once the banker is convinced, they will certainly sanction it. So I think majority of the questions on the same lines. Issue ये हो रहा है कि जो bankers हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपका contract period जो है वो limited है. For example ये PLTT का जितना भी हुआ था, so they are suggesting against the restructuring of the loans. So that is the problem everybody is facing. Now, even if you sit in the banker's place, you will have the same thing in your mind also, because when the contract is having a certain period, it doesn't give any guarantee to the banker that you will continue to get the contract. So the best thing is from the Dicky platform, it is better to get the contract extended because of this pandemic period. And I think the oil company authority should cooperate with you. And secondly, when the oil companies have given these kind of assurances to you that they will keep on giving you businesses, then extension of contract should not be a problem for them. But insofar as banker is concerned, I will give you another example. When we give loan against rent receivables, there also when rent is, let us say, for 5 years, and you want to discount the rent with the bank will first thing they will say, your rent is for 5 years, so we will calculate only up to 5 years eligibility and discount it. So it is the same thing here. When your contract is having a certain period, banker will not have rather anything to put on record that you will continue to get the business. If your entire business viability is based only and only on the contract. But in the business situation where your business viability is irrespective of the contract, if you are in a position to show the business viability, then it is up to you that how you are convincing the banker that whether contract or no contract,
you will continue to get the business. That's another way of presenting it. Thank you, sir. Next question is from Mr. Dinesh Paswanji. He is requesting PSB ऑनलाइन से borrower को लोन क्या दिया जा रहा है या कोई खामियां हैं तो बताएं. I think this is regarding the 59 minutes loan. Now, I will not comment on that scheme much, but principally 59 minute loan जो है, it's not a final sanction. That's what I understand. It's a in principle approval. Thereafter, once the bank through that PSB 59, once your loan is in principle approved, you will have to go to the bank and submit all your papers, and then the bank will do a final appraisal for the sanction. Now, in principle, 59, that's only the tick boxes, whatever you are submitting. So whatever you are submitting, based on that, they may give you in principle agreement. But in detailed assessment, if they find that it is not possible to give you loan, then perhaps they may not give. Or suppose in principle you have taken a you have got the approval of 1 crore or 2 crore loan. I don't know what is the highest sanction under that. But if it is a 1 crore, and if in the final assessment bankers say, no, you are not eligible for 1 crore, we will give you 25 lakh or 30 lakh or 50 lakh. So it will, the final sanction will be based on the detailed assessment. Thank you, sir. So the another question is from Mr. Ojas Sonavane. His question is, while seeking a loan from any financial institution, is it also necessary to know of our current financial position and solvency? Financial resources owned by the SME are relatively scarce in comparison to large scale and hence need to be optimized. The question is, should small and medium scale proprietors consult chartered accountants and or financial risk manager to evaluate their credit score through accounting analysis, or should they do it on their own? Let me tell you, this is something different. I will tell you either advice. I have seen throughout my life that 99% entrepreneurs depend on Indian Bank. Hello. Please continue, sir. Yeah, 99% of the entrepreneurs depend on financial consultants or accountants, chartered accountants, what we call, for their financial documents, financial statements, or financial submissions. Many times we have seen that whenever person is bringing any project report, that project report also is prepared by a chartered accountant. If you ask some 2-3 questions on the project report, that entrepreneur is normally not in a position to reply if it is not prepared by him. So therefore, because that is a specialized skill, nobody is having a specialized skill sets, and particularly the entrepreneurs. And if you are a technocrat, means if you are an engineer, you have started your own business, you must be having domain knowledge in your area, but you may not be having knowledge in the financial sector, because these are the chartered accountants. They are having separate set of knowledge. They look it from the accounting angle, they look it from the taxation angle, they look it from various angles. So in my opinion, if you have that expertise, definitely use that expertise. But if you don't have expertise, then it is better to talk to the experts. I will not say go to chartered accountant only, but whosoever is expert, he can guide you. Please take the advice, because ultimately what you are presenting to the bank, that should have a reliability. That should have also a relevance to the situation what you are projecting. You should not either overestimate the projections or underestimate the projections. In both ways, it will be dangerous. Rather, it will not be suitable to you for running the business. So next question is from Mr. Balveer Singh. Yes. I had taken a loan from HDFC Bank, which was restructured as per Resolution Framework 1 for 1 year. Now, as per Resolution Framework 2, can my loan be restructured for 2 years
for principal amount plus interest? Yes, it can be. Thank you, sir. Next question is from Mr. Sushil Kumar. There are two parts to the question. Number one, do we need to have the account in government banks to get the benefit of the government schemes, or private banks account will also work? ये सब मैं हिंदी में भी दोहरा देता हूँ इसको कि क्या ये जरूरी है कि हमारा नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट बैंक्स में ही अकाउंट हो ताकि हम जो ये स्कीम्स है उनकी सुविधा का लाभ उठा पाएं. So second part is current his own personal situation where currently we are having account with ICICI and Kotak Bank, and we want to open an additional account in SBI. However, it refuses to open the account, mentioning the RBI guidelines, which says current account can be opened. No new current account can be opened if the company already having an account in other bank or OD facility is running. That's correct. The Reserve Bank of India has recently given advisory to all the banks, issued the guidelines that if you are having credit facility from a particular bank or set of banks, then you cannot go outside that bank or outside that set of banks to open the account with any other bank where you don't enjoy the credit facility. This is again for ensuring the credit discipline, financial discipline among the borrowers. There are many instances, rather n number of instances you can say, where borrowers are having loan accounts with some particular bank, whereas they keep their floating funds, they keep their current account with some other bank. Because of that, there is a diversion of funds. Bankers are not having any control on the cash flows of the borrower. In order to restrict those malpractices, Reserve Bank of India has come out with these guidelines, and no bank will open the account today, at least, if you are having enjoying credit facilities with some other bank. So if State Bank of India is refusing, they are right at their place. Coming to your question number one, whether it is required only in the public sector bank, I will say no, it is not required in only in PSBs. It can be open in the private sector also. नहीं सर, उनका सवाल ये था कि ये जो अभी जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 है, इसका बेनिफिट जो है अगर उनका that is for all. All, that is exactly. That circular I have given to Mr. Dangi. I think that will be circulated to you. But as I told, even if you don't get circular, all of you are actually well versed with the internet. Please go on RBI website and you will find the circular there. आई थिंक बाकी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है वही कि रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1 के दौरान रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, क्या वो दोबारा फ्रेमवर्क 2 में रिस्ट्रक्चर हो सकता है? जिसका ऑलरेडी आपने जवाब दे दिया है, हो सकता है. और बाकी क्वेश्चंस भी ज़्यादातर बल्क एलपीजी ट्रांसपोर्ट को लेके ही आ रहे हैं, जिसका भी जवाब आपने दे दिया है. अगर कोई अन्य क्वेश्चंस नहीं है तो आई वुड लाइक संजीव जी टेक ओवर फ्रॉम हियर. मैं एक ही सजेशन दूंगा कि हम सारे बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि हमको फंड्स की उतनी ही जरूरत है हमारे बिजनेस सर्वाइवल के लिए, लेकिन आप उतने ही फंड्स लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. हुआ ये है कि जब कठिन परिस्थिति से हम जा रहे हैं और हमारे खुद के बिजनेसेस और कैश फ्लोज जब बिल्कुल डिप्लीटेड हैं, तो हमारे कैश फ्लोज में हम जितना रिपेमेंट कर सकते हैं हमने उतना ही बारोइंग करना चाहिए, क्योंकि और बारोइंग आप अगर करोगे तो शायद इतना ज्यादा होगा कि आपका बिजनेस सर्वाइवल प्रॉब्लम में ना आना चाहिए. इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, so that you definitely what I am suggesting is definitely take funding, additional funding from the bank. But just because bank is giving funding, don't go and queue up in front of bank and take additional borrowing on your head. If you are not in a position to repay, it should not become a problem, or it should not become a issue for your survival. Because if you are not in a position to service the debts, your account may become NPA, bank may start recovery process, and in the process you will have to shut down the shutter. So in our Marathi, there is a one saying, "Antrun paun pay pasraya," means see how much is your bedding and accordingly stretch your legs.
सर इस पॉइंट पे मैं एक चीज और एक्सटेंड करना चाहूंगा इसी पॉइंट को, जो फ्रेमवर्क रेजोल्यूशन 1 के दौरान हुआ था और उसका खामियाजा काफी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को भुगतना पड़ा था। जो अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी कि 20 लाख करोड़ तहत के अंदर जो 20% जो मिलना था लोगों को, तो बैंक द्वारा बैंक्स को टारगेट भी दिए गए थे कि ये आपको देना ही है एसएमई बिजनेसेस को। तो बैंक्स ने जो है हर बोरोवर को अप्रोच कर करके उनको बोला कि नहीं आपको मिल रहा है, आप लीजिए कम इंटरेस्ट रेट पे। वहां पर काफी गलतियां हुई कि न चाहते हुए भी, जरूरत नहीं होने के बावजूद भी लोगों ने उस चीज को लिया और वो आज कठिन परिस्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल सही है, और मेरा वही अनुभव से ही मैं ये सजेशन कर रहा हूँ, because I also know many people have borrowed and they are finding it very difficult today to repay. So therefore, I thought this is also word of caution that whatever facilities are coming to you, take it judiciously. See that helps you to revive your business. Don't divert that money once you take the money and divert it here and there. If it is required for revival of the business, then please use it for only for revival of the business. And whatever money you can earn out of business, that's your money. Bank borrowing is not your money. Just keep that in mind. So that's it. Thank you so much. That is Thank you so much, from sir. me. I must thank Mr. Milind Kamleji, our chairman, for having considered to once again to invite me for this issue. As you know, I have been associated with Dicky movement for a long time, more than a decade, you can say, during its formation days also, because I also was a junior in the banking industry that time. But as a AGM, DGM, GM, we used to interact with the Dicky people wherever I have gone. We try our level best to see that our all entrepreneurs are succeeding. We are always very proud of all of you. As I said, you people have taken this courageous step of entering into entrepreneurship. But having started it, all of you must be going through a lot of challenges. But one thing I will tell you, they always say, survival of fittest. If you are, fighting it, which, as I said, it is there in your DNA. I need not to explain it again. So, if you garner that courage to get over all these problems, believe me, you will have a wonderful future, because our country itself, its economy is very resilient economy. It will not go down so easily. We are blessed with the population. Our population mix is also wonderful insofar as world's population when we compare it. So based on those ingredients, I am quite sure that your future is quite bright. But to reap the benefit of that bright future, you must keep yourself fit and come out scathlessly. So my best wishes to all of you. If you have any problems anytime, please feel free to contact. I keep on coming on the key platform. I keep on interacting also with your leaderships, and we will keep on guiding you time and again. All the best to once again to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत अच्छे से आपने Thank you. Over to किया. you, Sanjay. Sir, I would request our Director General, Mr. Janki Ram Shankar, to give a vote of thanks. Shankar, sir. Yeah, thank you, Mr. Taki. Thank you, जी. जैसे पिछले साल आप टिक्की के साथ आपका इंटरेक्शन होता, उसमें आपने 3-4 चीज रखा था, दैट फोकस ऑन द एसेंशियल. उतने टाइम जो कंपनीज एसएमईज वो बंद हो रहे थे, दैट वाज अराउंड 25-30%. But today the number is more, we are like you rightly said, it's around 40% of SMEs. So challenges थोड़ा different है लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में. अभी उसी टाइम तो ऑपरेशनल चैलेंज था, अभी तो वो दोनों ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चैलेंज दोनों जोड़ गया अभी. तो इसलिए आपने सही बताया, जो जो लोन चाहिए, जो बैंक से चाहिए, उसी के लिए यूज करना, हर फंड्स का या डाइवर्ट मत करना, क्योंकि अभी कैश फ्लोस काफी एरिया में एकदम ड्राइड अप हो गया. तो इसलिए वो उसी में ध्यान देना. वो तो बहुत अच्छा चीज आपने बताया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो फंड्स वो बैंक से ले रहे हैं वो रीपे करना है.
ये कोई मुफ्त का चीज नहीं है, वो प्रॉपर टाइम पे यूज करना है, प्रॉपर चीज को यूज करना है, और ये उद्यमियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे बढ़ने के लिए कैसे यूज करना है और कैसे उसकी समय में फोकस करके आगे बढ़ना है। So this 1.5 hours or maybe yeah, exactly 1.5 hours of your discussion was really enlightening for people. तो ये एक तो बिजनेस फोकस और दूसरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये दोनों प्रॉपर फोकस में लेके आया तो nobody can stop the growth of the SMEs in India, and that too they can win over this pandemic. They have to look beyond and think beyond pandemic and start looking at how do they focus in the next 3 years or 5 years, and how they can tide over it. And thank you very much for your time, and we would require your guidance at whichever time we require. We would be very happy to disturb you, and I'm sure you would be happy to come and be associated or guide us at any point of time. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thank you. And thanks all the participants for listening for almost 2 hours at same place. Thank you very much, and we will continue this expert series on various topics so that we are all abreast with the industry. और आगे बढ़ने के लिए जितना भी योजना है, टिके की तरफ से हम आपको पूरा मदद करूंगा।